Now, before we proceed, let me take a minute to introduce Pushpa Jeweller Limited to those who might be new to this journey. Pushpa Jewellers Limited is one of the leading B2B jewelry manufacturer in India, known for its traditional and modern gold jewelry featuring fine stones for like emerald, jade, pearl and Meena. With a strong domestic footprint and exports to Dubai, the US, the Australia and company offers a diverse range including necklace, rings, bangles and more. Combining in-house designs with outsourced manufacturing, it serves wholesalers, retailers and government entities. Now, to officially begin this special event, I'd like to invite Mr. Mridul Tibrewal to address the gathering. Thank you, sir. The stage is yours. Thank you so much everyone for coming today. So, why Pushpa Jewellers? First of all, I would like to talk about my vision. Why Pushpa Jewellers? Because we are about affordable luxury. We are creating jewelry which is available for the masses. Jewelry एक ऐसी चीज़ है जो आपके लाइफस्टाइल के एस्पिरेशंस को शुरुआत देता है. आप कुछ खरीदना चाहेंगे तो अफोर्डेबल नहीं होता है. वी मेक ज्वेलरी सो अफोर्डेबल फॉर नॉर्मल पीपल दैट एवरी सिंगल ह्यूमन बीइंग इन दिस कंट्री कैन बाय आवर ज्वेलरी. So we have I'll talk about a few of our numbers and our journey and how I started my career. I am a first generation entrepreneur and I've started with very humble beginnings by trading and then manufacturing and then learning the core of art of jewelry making. From there I started with zero capital. I built up almost 40 lakhs capital and from there on today we are sitting at 281 crores of turnover. I'll talk about few of my numbers for the last 5 years. Before that, I'll just tell you of our journey. Last 15 years, in 2009, we became a private limited company. We have a top strong B2B presence across India with offices in Chennai, Bangalore, Hyderabad, and coming up with an office in Vijayawada. We are selling 100% hallmark jewelry. We have strong quality checking systems and we are an asset light model where the company is only having very strong strategic assets which are going to help us grow in the future. We have branch cum showrooms in Chennai, Hyderabad and Bangalore and we are coming up in Vijayawada also. We have an in-house design team which is manufacturing the latest designs and patterns. Our mission and vision, you would say, is to provide luxury to every household in this country. So, for example, if you see this item, आप लोगों में से कितने लोग गेस कर सकते हैं कि ये कितने ग्राम का बनेगा? एक रफ आइडिया? 10 grams. I'm talking about real gold jewelry in 22 carat. Ladies in the crowd. So somewhere any normal jeweler will make it in approx 50 to 80 grams. We try to make this in 20 grams. So this is our forte. So we are trying to make jewelry affordable and as well as making you look good with our jewelry. So our journey started with very humble beginnings. We started in 2009 and we registered our trademark then and there because I had a vision that we are about to grow very big. And in 2009 we had one showroom in retail space and very soon we realized that our forte was manufacturing and designs. And we were doing exhibitions like any other retailer and a lot of B2B players, lot of retailers, other jewelry stores started approaching us और हमारी ज्वेलरी मांग रहे थे. हमको लगा ये कैसे पॉसिबल है कि एक जो मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ दूसरे ज्वेलर्स मेरे से मेरी ज्वेलरी मांग रहे हैं. इज इट पॉसिबल? And then we realized that our designs and manufacturing is so good, the cost is so good to them, they are not able to believe कि इतना अच्छा ज्वेलरी बना रहे हैं कोई कैलकाटा में बैठ के. So हमारी ज्वेलरी की इतनी डिमांड हो रही थी कि we realized B2B is the space for us, not B2C. And we started shifting our focus to B2B.
वहाँ से हमने अपने B2B के ऑफिसेस खोलने शुरू किए। फर्स्ट ऑफिस हमने रायपुर में खोला था, फिर चेन्नई में खोला। रायपुर ऑफिस में हमको उतना ग्रोथ नहीं दिखा, बट दैट वाज अ वेरी वेरी लर्निंग कर्व फॉर अस। वहाँ से हमने बहुत सीखा। हमने सीखा कि कैसे ग्रो किया जा सकता है, और हमारी पहली सक्सेसफुल ऑफिस सुपर सक्सेस चेन्नई में खुली, उसके बाद हैदराबाद में, एंड नाउ इन बैंगलोर ऑल्सो, एंड ऑल ऑफ देम आर परफॉर्मिंग सुपर। हमारे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जुड़े हुए हैं। लाइफ मेंबरशिप है हमारी जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में। हमारी हजमा में लाइफ मेंबरशिप है, जो कि एक हैदराबाद बेस्ड लोकल ज्वेलरी बॉडी है, वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस। हमारी इज्जा की मेंबरशिप है, मेरी लाइफ मेंबरशिप। सो देयर आर लॉट ऑफ ज्वेलरी बॉडीज जिससे मैं एसोसिएटेड हूँ। लास्ट 5 ईयर्स के कुछ फिगर्स आपको बताते हैं। जस्ट in the year 2021, my turnover was 40 crores with a PAT of 1.7 crores. In 22, it was 107 crores with a PAT of 6.1 crores. In 23, it was 165 crores with a PAT of 165 crores with a PAT of 8.1 crores. In 24, it was 255 crores with a PAT of 13.5 crores. In 25, we are about to touch 281 crores with a PAT of 22.28 crores. So that figure is there in the RHP. These are some of the jewelry that we make. These are extremely lightweight gold jewelry. जो आप choker देख रहे हैं, that is only for 22 grams. And choker in the picture is only for 22 grams. So using all the stones and everything. Besides that, आपको एक सबसे अहम बात बताना चाहेंगे कि जो B2B सेगमेंट में हमारे पीयर टू पीयर सेगमेंट जो है, उसमें प्रॉफिट मार्जिन बिटवीन 1% to 2% होता है। We have maintained a profit margin of between 5 to 7% for last 5 years. So that is a big achievement for us, and that is possible only because we make a certain quality of jewelry which others are not able to make. आप ध्यान से देखेंगे तो जो ज्वेलरी हम बना रहे हैं, these are value additions, क्योंकि ये जो ज्वेलरी बना रहे हैं हम, these are all handmade ज्वेलरी। तो जितने भी लोग हमारे बनाते हैं वो ज्वेलरी बनाते हैं मशीन मेड, which is very easy to make, and that is why it doesn't have much value addition. हम जो बनाते हैं it is handmade jewelry, and we have created systems around it कि हम ये faster बना सकते हैं compared to our peers. जो हमारे reasons है for very high profits and very high margins is that we have very extreme operational efficiency. हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी इतनी हाई क्यों है, तो मैं आपको थोड़ा वो एक्सप्लेन करूंगा। दिस इज बिकॉज ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स। वन ऑफ द फैक्टर्स इज हमारे ज्योग्राफिकल प्रेजेंस। सो आप देखेंगे कि हमारे जितने भी जगह पे ज्योग्राफिकल प्रेजेंस है, जो भी हमारे B2B प्लेयर्स होते हैं, वो किसी ना किसी होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो जो होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो उनका 3-4% मार्जिन ले लेता है। हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट ऑफिसेज हैं हमारे, जहाँ पे हमारी डायरेक्ट टीम है, और वो जो मार्जिन है वो हमारी कंपनी में आती है इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर। तो वो जो मार्जिन आती है हमारे पास, इसके कारण हमारे कैश फ्लो और ग्रोथ बहुत स्ट्रॉन्ग है, और हमारी सेल्स कभी भी गिरती नहीं है। जो होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर होता है उनके पास में और भी प्रोडक्ट्स होते हैं सेल करने के लिए, लेकिन जो हमारी खुद की ऑफिस है वो उनके पास में सिर्फ हमारी ऑफिस है, और वो हमारी प्रोडक्ट पे फोकस कर रही है। उनके पास में दूसरे प्रोडक्ट सेल करने के लिए फोकस नहीं है। सो दीज आर फ्यू ऑफ द मार्केट्स, तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, जिसमें हमारा प्रेजेंस है। आप देख सकते हैं कि डिफरेंट मार्केट्स में हमारे क्या स्ट्रेंथ है। Besides that, we are also exporting to US, Dubai and Australia. आप लोगों को एक बुकलेट मिला है जिसमें काफ़ी सारे प्रेजेंटेशंस है।
मैं थोड़ा सा, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं बताई हुई है, मैं थोड़े नंबर्स पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, बिकॉज आई थिंक इन्वेस्टर्स के लिए नंबर्स ही मैटर करते हैं, बाकी तो सारी स्टोरीज है. सो आई लेट द नंबर्स टॉक rather than anything else. So हमारी कंपनी ने ईयर ऑन ईयर फॉर द लास्ट 5 years कंटिन्यूस रिटर्न्स दिए हैं with a compounded growth of every year annual CAGR of 60%, which is not a normal growth. Our sales CAGR has been for the last 3 years, it's been 71%, and our PAT CAGR is 97%. So रही बात कि why Pushpa Jewellers has such high margins, high PAT margins, rather than other players are not having, and why Pushpa Jewellers is able to grow such in such a huge margins and huge way. Every year we have grown 60-70%, where other players are not able to grow that much. आप ज्वेलरी सेक्टर में कहीं भी उठा के देखेंगे 20-25% की ग्रोथ रहती है. We have grown 60% year on year, and why we have been able to do it? So there are multiple reasons. Geographical advantage is one of the reasons. Besides that, the other reasons which are there is ये सारे फिगर्स है. आई टॉक अबाउट दीज फिगर्स, बट ये हमारे रीजन ऑफ ग्रोथ क्या है ये मैं इस पर फोकस करना चाहूँगा. सो आई थिंक वो प्रेजेंटेशन में नहीं है. सो वो मैं आपको आज सीक्रेट बताना चाहता हूँ कि पुष्पा ज्वेलर्स के ग्रोथ का सीक्रेट क्या है. सो वो सीक्रेट है हमारी स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स ओरिएंटेड कंपनी है. हमारी जो कंपनी है वो पूरी आप बोल सकते हैं वी वर्क इफ नॉट बेटर देन ऑलमोस्ट लाइक टाइटन और एनी कॉर्पोरेट कंपनी, जहाँ पे वी आर अ होली सिस्टम बेस्ड कंपनी. हमारे यहाँ जो भी काम होता है, एक सिंपल अगर एक कोरियर बॉय ने एक कोरियर हमारे को डिलीवर किया, वहाँ से लेकर उस कोरियर को अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचने तक का काम ऑलमोस्ट अमेजॉन मॉडल या मोस्ट कॉर्पोरेट मॉडल्स पे चलता है. अगर हमारे काउंटर पे किसी ने एक कोरियर रिसीव किया तो वो उसी वक्त एक फॉर्म फिलअप होता है जहाँ पे उसकी प्रूफ उसकी फ़ोटो के साथ में उसके वो कोरियर अकाउंट्स में जाएगा कि प्रोडक्शन में जाएगा कि सेल्स में जाएगा. इस लॉजिक के साथ में वो रिसीव होता है और उस पर एक टैग होता है, टर्न अराउंड टाइम होता है. मैं एक बहुत सिंपल मॉडल आपको बता रहा हूँ, सिंपलेस्ट ऑफ वर्क इन एनी कंपनी. और उसमें एक टैग सिस्टम होता है टर्न अराउंड कि 15 मिनट के अंदर ये कंसर्न डिपार्टमेंट में पहुँच जाना चाहिए. तो वो 15 मिनट में पहुंचा कि नहीं, जिसने रिसीव किया वहाँ पे उसकी प्रूफ हो गई कि 15 मिनट में पहुंचा कि नहीं, और वो पहुंचने के बाद में उसको जो भी करना था वो कोरियर सही सलामत पहुंचा कि नहीं, वो मेकर चेकर हो जाता है. सो दीज आर फ्यू ऑफ द सिस्टम्स दैट वी यूज, जिसके कारण हम इतना ग्रो कर पा रहे हैं. ये हमारे कंपनी के इनबिल्ट कल्चर में घुस चुका है, मेकर चेकर सिस्टम, बीइंग वर्किंग ऑन टाइम, एंड इस पूरे चीज़ की अकाउंटेबिलिटी है. और इस पूरे ऑपरेशन में मैं कहीं भी इन्वॉल्व नहीं हूँ, प्रमोटर का इन्वॉल्वमेंट जीरो है. यहाँ पे प्रमोटर डिविडेंड कंपनी नहीं है, ये प्रमोटर सिर्फ विजन एंड ग्रोथ पे फोकस करता है. एज अ प्रमोटर आई एम ओनली फोकस्ड ऑन विजन एंड ग्रोथ. ये सारे के सारे काम सिस्टम ओरिएंटेड चल रहा है. ये पूरी कंपनी एक सिस्टम पे चल रही है जिसमें प्रमोटर का सिर्फ विजन और ग्रोथ पे फोकस है. हमारे जो ऑफिसेज है, ज्योग्राफिकल हमारे ऑफिसेज है राइट नाउ 3 ऑफिसेज. हर ऑफिस में एक टीम है राइट नाउ, और एक सेल्स टीम है. दीज आर सेल्स ऑफिसेज जहाँ पे एक सेल्स टीम है और उसका काम है सेल्स करना. हम अभी 6 और ऑफिसेज खोल रहे हैं. सो वील हैव टोटल ऑफ 9 ऑफिसेज एंड हर ऑफिस में 3 टीम बैठेगी. So total of 27 verticals will have 27 teams. That is 9x growth in the sales team. That is one of the reasons we will be growing. You can calculate the numbers. That will be the level of growth we are looking at in the near future. We have a strong inventory management system. जहाँ पे हमारी जो इन्वेंट्री है हमको पता होता है कि क्या बनाना है. Any B2B player, any jewelry player in this country has a 2.5 times of inventory turnover. हमारी जो inventory turnover है that is 10x annually, and we have been able to maintain it year on year because हमको पता है कि क्या बनाना है. So we are working on you can say we are working on a model जहाँ पे हमारे inventory में हमको क्या रखना है और हमारे क्या आइटम्स बिकेंगे हमको ये पहले से पता होता है. वी डू प्रिडिक्टिव एनालिसिस, वी डू डेटा एनालिसिस, और उस डेटा एनालिसिस पे हमको ये मालूम होता है कि हमको क्या बनाना है और क्या बिकेगा, और हम सिर्फ वही बनाते हैं. तो हम 30-40 डेज से ऊपर का स्टॉक मेंटेन करने में बिलीव ही नहीं करते.
और हमारी टोटल चर्न साइकिल 40-45 डेज की है. Future growth, we are also coming in. We are also creating a sales chat-based AI model जो हमारे लिए सेल कर सकेगा. So future growth हमारे को ये सारी चीज़ें भी मिलने वाला है. हमारी वीकनेस जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, फ्लक्चुएशन इन रॉ मटेरियल्स, ये हमारी वीकनेस है. उसके लिए हम हेजिंग करते हैं. सो दैट वी आर सिक्योर्ड विद दैट. हमारे पास में हैंडमेड आइटम्स है तो लिमिटेड स्केलेबिलिटी है. रिसेंटली वी हैव क्रिएटेड लॉट ऑफ सिस्टम्स जो हमारे हैंडमेड आइटम्स हैं वो हम काफ़ी स्पीड से मैन्युफैक्चर कर सकेंगे. और इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस, ये तो कोई भी कंपनी इस चीज़ को बीट नहीं कर सकती है कि अगर ट्रम्प या कोई आ जाए या कुछ स्टेटमेंट दे दे तो वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट. सो ये तो सारी कंपनीज इस पर डिपेंडेंट है, बट अदरवाइज वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी. Now we'll talk a bit about our numbers and ratios. So you can see this is the market size of Indian jewelry. In 2023 it was $37 billion and it has been growing ever since. बीच में dips आते हैं. So this year it has been $29 billion last year, and this year again we are seeing a big demand and big growth in this sector. Just the kind of jewelry that we are making, according to the World Gold Council, it is the market size, just in India, the market size is 75,000 crores. And we are sitting at a very, very low number, so हमारे पास growth के बहुत ज़्यादा scope है. We are sitting at 300 crores, where the market size is 75,000 crores. Net export of jewelry from India is, last year it was $32 billion, and imports was $22 billion, as you can see. So as you can see, the market share of jewelry in India is 40% South India. And the good thing is Pushpa Jewellers is sitting all its offices in South India, and we have most of our markets in South India, and we have good, very, very strong presence in South India. So we have that 40% market share. Now you can see our numbers, how we have grown. So from 165 crores, we have increased our revenue to 255 crores, from there to 281 crores. Our margins have also grown exponentially. The PAT margins from 4.9% to 5.3% to 7.9% this year, last year. And from there, you can see the profits also has grown very, very nicely. And EBITDA, you can see it has grown so handsomely. So you can see all the money, the cash flow that is going into the capital is going to give very good returns this year. Return on equity and return on capital employed, you can see has seen a fabulous growth year on year, from 44% to 47% every year, and from 21% to 27%. So even there we are seeing very, very good growth. Our debt to equity ratio has gone down, and debt service coverage ratio is also very healthy compared to peer to peer. Our current ratios, if you will see, in FY23 the receivable days was 10 days, and it has grown to 16 days because we have entered a few new markets, and we have introduced new products, so which is going to again come back to 10 to 8 days. And earnings per share is also, you can see it has gone up very, very high, and net asset value, you can see it has jumped substantially. So we are doing very good there also. I can hardly know very few companies in India, listed or otherwise, which has grown 50-60% year on year. So proud to say we are one of the companies which has grown year on year. So you can see our profit and loss statement and numbers. So we have done pretty good there also. From so in the last graph, we have seen all of these numbers already. So we'll move on. We have a healthy, super healthy balance sheet. We have good assets in our company. So most of our offices, wherever we plan strategically, we are owning the offices, and all the offices are company owned, not promoter owned. So that
that proves a very, very healthy environment where the promoter is not taking money out of the business and the assets are owned by the company, not by the promoter. So this is something of a point to note. So our cash flow is also very, very strong. For the last 5 years, the cash flow has been very, very strong. This year we have done a lot of capex. We have acquired a few offices and showroom spaces, because of which this year the cash flow has been used a bit. But next year again we will see very, very strong cash flow. So it says in the slide, it says the promoter has a 15 years of experience, but I have experience of 25 years. So I was doing my chartered accountancy and I am a first generation entrepreneur. So आप लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट करेगा. So मुझे entrepreneurship का कीड़ा था और my father is a chartered accountant and जो फैमिली प्रेशर होता है कि भाई चार्टर्ड अकाउंटेंसी ही करना है, एक सर पे तलवार थी. सो मुझे सीए करने के लिए मजबूरी किया गया था. तो मैं सीए कर रहा था एंड करते करते साथ में मैं ऑलमोस्ट 10 बिजनेस हाउसेस के साथ में जाके फ्री में काम किया मैंने टू अंडरस्टैंड द बिजनेस वर्ल्ड. एंड फाइनली आई लैंडेड इन द ज्वेलरी सेक्टर एंड जहाँ पे मुझे रियलाइज हुआ कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर सेक्टर, जहाँ पे अगर किसी को एंटरप्रेन्योरशिप में स्टार्ट करना है तो दिस इज द मोस्ट सेफ एरिया टू स्टार्ट विद, बिकॉज यहाँ पे पैसा डूबने का डर नहीं था. क्योंकि गोल्ड है, रात को 12 बजे बेचना है, आपको कोई ना कोई खरीदार मिल जाएगा. 5% ऊपर या नीचे आपको पैसा आपका घर पे आ जाएगा. सो दिस वॉज द मोस्ट सिक्योर स्पेस जहाँ पे मुझे लगा एज अ फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर आई कैन एंटर इफ आई कैन लर्न द ट्रेड. सो व्हेन आई स्टार्टेड माई लाइफ दैट टाइम देयर वाज नो गूगल, देयर वाज नो याहू, और मुझे सब कुछ खुद से सीखना था. सो इट वॉज अ वेरी वेरी टफ जर्नी. इन 2000 there was nothing to learn from. So फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स के लिए उस समय काफ़ी डिफिकल्टी होती थी. अभी कोई समझना थोड़ा डिफिकल्ट होगा इस चीज़ का पेन. सो मैंने वो सारी चीज़ें खुद से सीखी और उस समय से प्रोप्राइटरशिप बिजनेस चालू किया था. इन 2009 वी बिकेम अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड देयर ऑन वी हैव नेवर लुक्ड बैक. हमारी एक ब्रांड आइडेंटिटी है, एकदम अलग है. बिकॉज आप आज ये हर जगह सुनाई पड़ेगा आपको कि लाइट वेट गोल्ड ज्वेलरी. वी वर द फर्स्ट वंस टू कॉइन दिस वर्ड लाइट वेट गोल्ड ज्वेलरी एंड वी स्टार्टेड लाइट वेट गोल्ड ज्वेलरी. एंड ऑल्सो वी वर द फर्स्ट पीपल टू मेक दिस काइंड ऑफ ज्वेलरी जो स्टोन बेस्ड ज्वेलरी है, और इसको इतना पॉपुलर लाइट वेट कैटेगरी में हमने, वी आर द फर्स्ट वंस टू मेक इट सो पॉपुलर. कमिंग टू द सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड सर्वेलेंस सिस्टम, वी हैव इन नंबर अमाउंट ऑफ CCTV कैमराज इन आवर स्टोर्स. बट CCTV के विदाउट भी हमको ज़रूरत नहीं. CCTV के हमारे सिस्टम्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि हमारे हर चेक्स एंड बैलेंसेस हर जगह पे इतने ज़्यादा हाई है कि कोई भी आइटम हमारे पास में कहाँ पे, किस ब्रांच में, किस डिपार्टमेंट में कितना मिलीग्राम आइटम पड़ा है, हमारे पास में पूरी रिपोर्टिंग होती है. उसके अलावा हमारी एक एक आइटम्स इंश्योर्ड है. अगर वो बीट विद कारीगर, बीट विद थर्ड पार्टी, कोरियर, लॉजिस्टिक्स, हमारे एम्प्लॉय, एवरीथिंग इज इंश्योर्ड. अगर हमारे एम्प्लॉय कोई उनके साथ में कोई चोरी हो जाती है या वो चोरी कर लेते हैं, इवन दैट इज 100% इंश्योर्ड फॉर आवर कंपनी. तो हम पूरी तरीके से सिक्योर्ड है कि वो पैसा कहीं भी हमारा कभी भी डूब नहीं सकता है. टचवुड वी हैव अ ट्रैक रिकॉर्ड कि लास्ट 10 साल में हमारा कोई पैसा डूबा नहीं है. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट वी आर प्राउड टू से, ये बात मुझे भी अभी पता चला जब मैंने IPO के लिए फाइलिंग की, कि हमारी कंपनी पे 17 साल में हमारे को कोई GST, कोई इनकम टैक्स, कोई लीगल नोटिस, कुछ भी नहीं था. सो हमारे जो लीगल कंप्लायंस टीम होती है, और ये सब मुझे IPO करने के दौरान मालूम पड़ी कि लीगल कंप्लायंस टीम ने बताया कि यू आर वन ऑफ द रेयर कंपनीज जिसपे एक सिंगल लीगल कंप्लायंस नहीं है. तो आई वाज लाइक ओके वाओ, दिस इज अ प्राउड समथिंग टू वेयर अ बैच. सो या दैट इज देयर. We are mostly two promoters who are super actively involved. Me and my brother Anupam Tibrewal. He is an engineer by degree, and without him I cannot imagine this company. यहाँ तक पहुँचने का मैं imagine नहीं कर सकता हूँ. He has been with me through thick and thin. So हम लोगों ने, he is the one who's handling all the production, design and the tech part of the company. He is the one who has built such amazing tech for the company कि आज के डेट में हम proudly बोलते हैं कि we are less of a jewelry company and more of a technological company, जहाँ पे
एक ERP तो हर ज्वेलर लगा लेता है, एक बेसिक सा पॉइंट ऑफ सेल्स लगा लेता है, बट हमारे ज्वेलरी फर्म में देयर इज अ सैटेलाइट ऑफ सिस्टम्स विच इज़ वर्किंग अराउंड दैट ERP, मेकिंग श्योर कि हमारे ऑपरेशंस और हमारे सारे सिस्टम्स इतने सुपर एफिशिएंटली चलते हैं लाइक द कॉर्पोरेट। और वो उसीलिए पॉसिबल है क्योंकि वो सॉफ्टवेयर्स अगर हम खरीदने जाते या हम खुद से किसी को हायर करके बनाने जाते हैं तो दैट वुड हैव कॉस्टेड अस crores of rupees, और वो आज हम इन हाउस करके और वो सारा इस तरीके से काम कर रहे हैं कि हमने रिसेंट में SAP वालों से मीटिंग की थी, उन्होंने बोला कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, ये तो पॉसिबल नहीं है जो आप कर रहे हैं। सो वी फेल्ट सो प्राउड ऑफ आवर सिस्टम्स एंड चेक्स एंड बैलेंसेस। ओपनिंग न्यू शोरूम्स, हम नए शोरूम्स आपको बता ही दिया, मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया ये पार्ट कि हम 6 और ऑफिसेज कम शोरूम्स खोल रहे हैं अक्रॉस इंडिया, starting with Vijayawada, Ahmedabad, Bangalore, Bombay, Delhi and Ahmedabad. And so few of the models यहाँ पे जो लिखे हुए मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। So ये zoom भी होता है क्या? Okay, so it is called CAPA system. If you will see the second point, CAPA system, corrective action, preventive action, हम एक गलती दोबारा रिपीट नहीं करते। आप लोग भी किसी ना किसी कंपनीज में ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड होंगे और आप देखते होंगे कि कोई आदमी आता है रोज़ सेम गलती करता है। चाय बनती है आपकी, चाय में आपको चीनी नहीं चाहिए, रोज़ आपके चाय में चीनी आ जाती है ना। तो हमारे यहाँ एक सिस्टम है, वी कॉल इट करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन। कोई गलती हुई जिसके कारण हमारे कंपनी में हल्ला हुआ, शोर हुआ, तो हमको ये पता है कि कहीं ना कहीं सिस्टम में फॉल्ट है, सिस्टम में फ्लॉ है, तो हम वो गलती को करेक्टिव एक्शन करते हैं, इमीडिएटली उसको करेक्ट तो कर लिया जाता है। बट मोस्ट ऑफ द कंपनीज में यहाँ पे प्रिवेंटिव एक्शन नहीं होता है,